Hello, Assalamu alaikum students. I hope you all are doing great and you enjoyed your vacations a lot. So, I'm Miss Faiza and I'll be teaching you social studies. And today we are going to start off with the first chapter that is about world climate. So, let's take a minute and think about what would be the chapter be about. So this is the map where they're showing about different areas of the world: polar, temperate, acid, tropical, Mediterranean, mountains, etc. etc. So you have the key of the map as well. So let's learn more about the world climate now. So what do you think? Weather and climate, what are these two terms related to? What is weather? What is climate? So today we are going to learn about the difference between both of them, and you will know what are they both about, and are they both different or are they both the same thing. So let's find these things out first and then start off with our chapter. So what is the weather about? What we get, the condition of the atmosphere over a short period of time. It can be into minutes or hours. So we can measure weather from day-to-day changes of the weather. For example, in the morning, right now, these days, in the morning, it's a little cold, whereas in the evening, it's it's windy, and at in the afternoon or at night it's a little bit raining, or you can say drizzling around at night time, so it's a little cold. So that is called weather because it keeps on changing after every hour or every 4 or 5 hours. So we can say we will call that the weather of Karachi. Whereas if someone asks you how is the climate of Karachi, what are you going to say? I am going to say that the weather of climate of Karachi is pretty humid, and it's mostly hot. It's not very cold nor it's very hot, but relatively it's hot and humid. So let's look into the climate. What you expect from a climate: how the atmosphere behaves around a longer period of time and space. Average regional weather pattern over a decade. Decade का measures 10 years. जो 10 years का weather होता है उसको हम merge करते हैं, and that make atmosphere जो जिस तरीके से behave कर रहा होता है 10 years से, उसको जो उसका pattern होता है उसको हम कहते हैं climate किसी भी जगह का. So it's measured by how the atmosphere behaves on a longer period of time. That could be an year or 5 years or 10 years, etc. Now let's look at the observing Earth global climate. So we know that the Earth climate is increasing every single day. हमारी जो Earth का climate है वो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है. It's getting warmer and warmer. As you all know that 5 years before, Karachi was not that hot as it is today. So अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जो अर्थ है हमारी उसमें हर जगह डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज सी. तो सी के करीब जो शहर है उनका क्लाइमेट अलग है, वहाँ ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे विंड चलती है, समंदर की हवा चलती है. फॉर एग्जांपल इन कराची हमारे यहाँ समंदर की हवा चलती है, हमारी ह्यूमिडिटी है, हमें पसीना ज़्यादा आता है और मॉइस्ट क्लाइमेट है हमारा. वेयर एज इफ़ यू गो टू द नॉर्दर्न साइड, वहाँ पे थोड़ा ड्राई क्लाइमेट है, ठंड होती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है, एंड एज यू कैन सी देर आर माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो ओवर दैट साइड एज वेल. सो वहाँ पे सी ब्रीज नहीं आती, ऑब्वियसली सी बहुत दूर है उनके और सी लेवल से वो लोग बहुत ऊपर है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ लिटिल दे ऑल्सो हैव ऑक्सीजन प्रॉब्लम, वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम होती है और वहाँ थोड़ा ड्राई क्लाइमेट होता है. सो दिस इज़ हाउ द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. हर कॉन्टिनेंट का, हर शहर का क्लाइमेट
दूसरे शहर से अलग होता है बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन इट इज़ एट। जहाँ वो लोकेट होता है उस हिसाब से उसका क्लाइमेट होता है। अगर पहाड़ी इलाके में कोई शहर है तो उसका क्लाइमेट डिफरेंट होगा, अगर कहीं सी से करीब है तो उसका क्लाइमेट डिफरेंट होगा, कोई मिड में है तो उसका क्लाइमेट डिफरेंट होगा। हर जगह का उसकी सराउंडिंग के हिसाब से क्लाइमेट होता है। एंड वी यूज सैटेलाइट्स टू मेजर द टेम्परेचर एंड द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। Now, what are the factors that are affecting the climate change? So, as you all know, we previously mentioned that the climate of the earth is increasing day by day. गर्मी बढ़ती चली जा रही है और सर्दी भी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा होने लगी है अब। ठीक है, तो इस वजह से हमारे जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सर्जन तक जा रही हैं। सो अब क्या हो रहा है कि हमारी जो है सी लेवल राइज कर रहा है, टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ रहा है और सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशन में हीट जो है वो बढ़ रही है और इसकी वजह से हमारा ग्लेशियर्स जो है पिघल रहे हैं, स्नो पिघल रही है, आइस पिघल रही है, सब चीज़ें पिघल रही है। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एक्सर्जन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज में हमारे यहाँ होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ये दो गैसेस होती हैं जिसकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और हमारा टेम्परेचर हाई होता है। अब ये जो दो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, सन की जो गर्माहट होती है उसको अपने अंदर केज कर लेती हैं, अपने अंदर बंद कर लेती हैं और उसकी वजह से जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। जितनी ज़्यादा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होंगी उतना ज़्यादा जो है हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। अब इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है दैट वी कट ट्रीज, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट लेफ्ट। और आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन जो है एक्सर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। जब इनहेल ही नहीं होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स ही नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में चलती रहेगी, विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर प्लांट्स, नॉट वेरी गुड फॉर अस ह्यूमंस एंड फॉर एनिमल्स एज वेल। तो उससे क्या होगा, हमारा जो है हमारी हेल्थ ख़राब होगी, हमारे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बेसिकली अर्थ का क्लाइमेट जो है चेंज हो जाएगा और इसी वजह से क्लाइमेट जो है वो दिन ब दिन चेंज हो रहा है। एंड वाई ग्रीन हाउस गैसेज कम इन टू बींग? बिकॉज वी बर्न फॉसिल फ्यूल्स। हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, उसका जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसका जो धुआं निकलता है, हम कचरा जलाते हैं, ये बर्न करते हैं चीज़ें प्लास्टिक की, उससे जो धुआं निकलता है, इन सब चीज़ों से मिल के ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। उसकी वजह से वो लोग एक्सर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। सो आई होप understood a lot of things today, and now that your video is over, we are going to ask you some questions and you have to do some quizzes, and then I'll check those quizzes and see you all in the next class. Okay, take care of yourselves and your surrounding, and I will see you in the next class. Allah Hafiz.